Hey guys, welcome to Chat Adda, brought to you by 24.7 Sports. Chat Adda is all about spontaneous conversation with Indian athletes. Athletes who will be the future of Indian staging in the sports globally. So, if you are sports enthusiastic and if you have sports kida, do like, share, and subscribe to our channel and follow us on social media platform under the handle 24.7 Sports. Thank you so much, and let's head to the video and see who is on the board today. Hello, sir. Thank you so much for Hi. joining us. I hope you are doing well. Yes, absolutely. I'm safe at home with my family and enjoying time after Great. a long time. Yeah, after a long time, I mean, in such a busy routine, you never get some time with your family, but you have got Yeah, great time with your family now. Okay, exactly. Yeah. let us start with this question. Can you tell me something about your childhood? Well, my childhood, it was very naughty, honestly. Uh, you know, जब हम लोग स्कूल में थे, तो we used to, after the class, हम लोग साथ में ग्रुप बना के, like मैंगो तोड़ने जाने का, and there were so many memories. Uh, very honestly, I'll tell you one thing uh, about the homework. जो भी Oh. टीचर हम लोग को homework देने की. Mm-hmm. So, what I used to do, I used to change my book cover. बाजू Okay. वाले का बेंच का लेके. I used to change my book cover. because we were sports person, so हम लोग के पास rarely कोई time मिलने का homework करने का. Yeah, definitely we used to go tuitions and everything everywhere, but homework करने के लिए अगर time कम मिलने का तो थे मेरे काफी दोस्त. और बेसिकली अभी जो मेरी वाइफ है वो भी सेम स्कूल से थी, वैशाली. Okay, okay. सो मैं उसका भी बुक लेने का, कभी कभार उसका भी मैं कवर चेंज करके मेरा बुक लेने का. तो टीचर सम टाइम राइट करके जाने की, स्टार्स देख के जाने की, तो सेम बुक वैशाली के पास जाने का. तो Okay. टीचर उसको देखने की कि तेरे को ऑलरेडी कैसे स्टार्स मिल गया. तो शी यूज्ड टू से कि टीचर ऑलरेडी आपने पहला मेरा चेक किया था, तो फिर बाद में इन लोग का. So yeah, that So was she so was much. supportive. She was supportive from school days. Well, basically, actually, स्कूल खत्म होने के बाद हम लोग मिले थे. टीवाई होने के बाद हम लोग मिले थे शिवाजी पार्क में, पर हम लोग फ्रेंड्स साथ में टच में थे वाया फोन, ऐसा वैसा. सो या और काफी मेमोरीज ऐसी है जो फ्रेंड्स लोग के काफी कुछ. तो इसमें से ये जो थी वो अभी तक मेरे को याद है काफी. No, it is worth remembering those days of school. Yeah. Worth remembering. और yeah. Going to the second question, how मतलब cricket ही क्यों as a profession, as a cricket क्यों choose किया? I mean, there might have been many other options. क्रिकेट के अलावा फुटबॉल था, या फिर इंजीनियर बनना है, हाँ डॉक्टर बनना है, बहुत सारी चीजें रहती है, बट क्रिकेट ही क्यों एज अ प्रोफेशन, एज अ क्यों सिलेक्ट किया? वेरी ऑनेस्टली, मेरा फैमिली बैकग्राउंड था वो थोड़ा क्रिकेट के साथ था. तो मेरे डैडी खुद क्रिकेटर थे. खुद ए डिवीजन खेले काफी साल. और वो पंजाब नेशनल बैंक में थे. So even he recruited as a sports person over there in Punjab National Bank. Okay. So I used to go for his match. हम लोग जब छोटे थे उनका मैच देखने जाने के ग्राउंड पे, और काफी कुछ सीखने मिलता था. तो so family से ही आया है क्रिकेट. The only thing is that he didn't play first class, or because that time अपना बॉम्बे का टीम तो आपको पता था, इंडिया से ही 9 प्लेयर ऑलरेडी रहने के. But yeah, he played with all Indian cricketers. जो भी ए डिवीजन खेलने के उन लोग के साथ खेले हैं. So you have got everything in hereditary from your father. You have got it in you, and now you're. Yeah. Okay. Good. So moving further, I would love to know about your first coach and his memories with him.
Well, very honestly, my first coach is my dad only. Okay. So I started my cricket at age of 3.5 years. Oh. So slowly I started with tennis ball. So yeah, मेरे डैडी मेरे कोच थे. So yeah, he is my first coach. फिर धीरे धीरे बाद में बढ़ते गए, कोचेस मिलते गए. फिर मैं वेंकसर क्रिकेट अकेडमी में था. So वेंकसर क्रिकेट अकेडमी में काफी कोचेस वहाँ पे रहने के. रवि कुलकर्णी थे, फिर वासु परांजपे थे वहाँ पे जिनके अंडर में था. फिर बाद में एल्फ वेंकसर क्रिकेट अकेडमी, फिर उन लोग ने सुबह का सेशन बंद कर दिया था. फिर बाद में then I used to go for practice at Bombay Gymkhana to Ashok Mankar sir was there. Yes. So yeah, so बाद में धीरे धीरे coaches मिलते गए. But yeah, my first coach is my dad. Great. So if your first coach was your dad, then your role model will be your dad only, or any other else. Yeah, exactly. No doubt in that. So have you kept anyone as your icon while joining cricket, or even? Well, there was so many players, no doubt in that, because every cricketer has at something extraordinary, at least 1 point somewhere. Yes. So I think Lara is my my best. I would say मैं हमेशा लारा को देख के उसका बैटिंग थोड़ा बहुत सीखने जैसा था. Obviously बॉम्बे से वसीम जाफर था, no doubt in that. Yeah, so still is मैं उसके साथ अभी भी टच में हूँ. But yeah, obviously whenever I'm whenever I'm getting lacking about the anything, about the not getting the runs or maybe so, sometimes I speak to him about so yeah, that's the thing. And no doubt he's my Wasim, because I was with Bombay team 13 years. Okay. So I played less match, but I was there with the Mumbai team 13 years, in out in the team. So yeah, so जब भी वसीम का बैटिंग देखने का था, so it was like after 20 runs he start playing table tennis straight away. Yeah, I mean उनको ball football के जैसे दिखने लगता था, and he was playing like amazing. I've seen him playing. Once I was at Wankhede Stadium for one of the Ranji matches, and luckily I got to see him playing, and it was amazing. I guess the match was against Saurashtra, if I'm not wrong. And even during that time, I guess I might have seen you, but I didn't have any chance to meet you. But I luckily met Cheteshwar Pujara at that time. Cheteshwar Pujara got injured and he came out because of injury, and he was going for some medication, and while going I met him. So just for a moment, but that was a great moment, I would say. इंडिया के लिए जो भी खिलाड़ी खेलते हैं, मतलब सभी खिलाड़ी जो इंडिया में क्रिकेट के लिए पैशनेट है, वो सब यही चाहते हैं कि हम कभी ना कभी किसी ना किसी दिन इंडिया के लिए खेलें, राइट? So what was your feeling getting that under 19 jersey, wearing that under 19 jersey and going on field to play for under 19 Indian team? What was that feeling? Well, feeling तो काफी अच्छी थी, no doubt, if you were representing for your country. So yeah, no doubt in that. तो काफी अच्छी positive feelings थी और काफी अच्छा हमारा bunch group था, So my roomie was Raidu. Okay. Yeah. So yeah, we had a wonderful time. Right. So आपने मुंबई के लिए रिप्रेजेंट किया है, काफी बार सचिन तेंदुलकर से मिलने की बारी भी आई होगी, आपने सचिन तेंदुलकर से मिले भी रहेंगे, ऑन फील्ड ऑफ फील्ड काफी बार मिलना हुआ होगा. मुझे ये जानना है, व्हाट काइंड ऑफ मोटिवेशन ही गिव्स यू व्हेन यू मीट हिम, एंड एट द सेम टाइम व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हिज प्रेजेंस ऑन फील्ड? लाइक वी हैव हर्ड दैट उनका प्रेजेंस होना फील्ड पे यही काफी हो जाता है ऑपोजिशन वालों के लिए, बट I would just love to know how is that effect? Well,
नो डाउट, जब पाजी जब टीम के साथ रहते हैं तो ऑब्वियसली टीम का एटमॉस्फेयर ही बहुत पॉजिटिव रहता है. हम्म. फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा लगता है हम लोग गेम स्टार्ट होने के पहले ही हम लोग जीत जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सामने वाला टीम को पता है कि अरे इसको आउट निकालो बस. So even पाजी जाने के तो you know him very well, so he's at least batting करके so one time को अगर ऐसा डर भी नहीं लगता था कि कभी कभार कि पाजी बैटिंग को जा रहे हैं और तो बाकी वाले पीछे जो बैट्समैन थे वो थोड़े रिलैक्स ही रहने के. तो या एटमॉस्फेयर हमेशा पॉजिटिव रहने का और हमेशा पॉजिटिव बातें ही होने की जब हमारे साथ सचिन सर रहते थे, नो डाउट इन दैट. और या सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर हम पे कम था, सामने वाली टीम पे ज्यादा था. सो आपको फीलिंग पता लगनी चाहिए कि कैसी फीलिंग होती है. राइट. काफी सालों से आप क्रिकेट खेल रहे हो एंड क्रिकेट इज सेड एज द जेंटलमैन्स गेम. सो एक स्पोर्ट्समैन में आप क्या क्या ऐसी क्वालिटीज देखते हो जो मतलब काबिले तारीफ होती है? एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ में क्या क्या चीजें ऐसी होती है? अगर आप देखने जाओ तो हर एक स्पोर्ट्समैन का हर एक डिफरेंट कुछ ना कुछ सिंगल रहता ही है. जैसे कोई बैट्समैन होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन. जैसे इवन मैं क्रिकेट का ही बात करूंगा, मैंने काफी बैट्समैन ऐसे देखते हैं नेट्स में 4-5 बार आउट होते हैं, बट मैच में उन लोग का अप्रोच कुछ डिफरेंट रहता है. राइट. तो वैसा वो एक था. बाद में और कोई बैट्समैन ऐसे होते हैं कि नेट्स में एकदम फोकस रखते हैं, बट ड्यूरिंग द मैच सिचुएशन वो लोग प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते. सो वो एक है. और काफी स्पोर्ट्स पर्सन का मैंने काफी कुछ नोट डाउन किया है कि ड्यूरिंग द उन लोग को स्पेसिफिक नंबर ही चाहिए, रूम नंबर. ये रूम नंबर में ही मैं जाऊंगा, टोटल 7-9 ऐसा कुछ होना चाहिए. right. और बाकी काफी कुछ चीजें हैं जिसको जैसे मेरा रहने का कि मैं रूम में जाने का तो मेरा रूम नीट एंड टाइडी मुझे लगने का हमेशा, वही मेरा माइंडसेट और मैं फोकस रहने का, क्योंकि सब जगह मेरे को टाइडी रहता है, नीट एंड. तो मेरा माइंड सेट उतना फोकस रहने का, मेरा कोई भी चीज इधर उधर मिलता नहीं है. इवन घर में भी. So yeah, that's the thing, I think हर एक स्पोर्ट्स पर्सन का एक रहता है. बट जैसे आपने पूछा कि कोई भी एक मैं हमेशा सचिन पाजी का जैसे भी उनका निक लगता है तो चले जाते हैं, वॉक ऑफ करते हैं. राइट. So same thing I saw the Dhoni also. Even same I learned from them only. Gilchrist भी वैसे ही करते थे. I mean many of the players. Gilchrist भी वैसा ही था. So yeah, as a gentleman game आप अगर बात करोगे तो fair cricket ये मैंने काफी देखा है, और जैसे कभी कभार अंपायर को भी पता नहीं चलता है क्योंकि इतना क्राउड रहता है. और निक लगने के बाद अंपायर को इतने क्राउड में सुनाई भी नहीं देता है. So yeah, I think going further, okay, so I guess you have answered this question before, like who is very close to you in the Indian cricket team. One of them is I want to add one thing. I remembered. Okay. As you said, Paji is. I asked Sachin Paji, when especially in UK, I played in UK minor, Premier 1 league over there, 13 years. But initially I used to, I was swing खेलने को मुझे difficulty हो रहा था basically. So early maybe in 2006 या 7 का बात है. तो मैंने तब पाजी को पूछा था ये बात कि पाजी के थोड़ा swing मुझे खेलने difficult. So he told me only one thing: just try to play close to the body if it's swing. Okay. So works me really well, मैं सोच रहा था कहीं ड्यूक बॉल है, काफी स्विंग हो रहा है क्या, but yeah, if it's swing, if you play close to the body, that's it. It's much better to bat easy,
with the new ball. Yeah, those So small that's the tips, one. small tips that Yeah. he gives. Small tips that he gives. Right, Yeah. right, And right, right. and one more I would like to add. I was very when I started cricket, I started with my batting with cricket keeping pad. So at that time there was my family background was, we were from a very middle class. So तब अंडर 14 का एल्फ वेंगसरकर अकेडमी का कप था, तब मेरे पास वो पैड्स पे ही था, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। तो वो पैड पे मैं बैटिंग करने का, सो आफ्टर दैट दिलीप सर ने देखा, सो दिलीप सर के अकेडमी से ही मुझे क्रिकेट शूज मिले, फिर पैड्स मिले, Okay. So yeah, still I remember those stories. And सचिन, जब मैं धीरे धीरे मुंबई को अंडर 19 को जब सिलेक्ट हुआ, तब अतुल रानडे जो सचिन के काफी अच्छे दोस्त थे, सचिन सर, तो वो हमें सचिन की बैट हमें देने का कि प्रफुल्ल जाके खेलना। हम लोग जब भी रन्स करने के ना, तो अतुल रानडे हमेशा हमें एक बैट देने का, तो हम लोग को एक मोटिवेट होने का। That time I used to play for Custom. I played for Custom nearly 3 or 4 years. Okay. For Custom. Yeah. So तो हम लोग को वैसा बैट कभी मिला ही नहीं था, और सचिन का बैट मतलब हम लोग ऐसा सोचे कि हम लोग कब नेक्स्ट 100 मारे और हम लोग को अतुल बैट दे. Right. So yeah, those still memory I remember. वो एक टाइम था जब हमारे पास कुछ नहीं था, पर हम लोग के फ्रेंड्स लोग ने काफी कुछ हेल्प किए थे हम लोग को. तो वो एक मोमेंटम था जो मैं कभी भूलूंगा नहीं लाइफ में. Right. और I used to डैडी का जो ऑफिस का बैट होने का, तब हमारे पास तो वो फुल साइज बैट होने का, तो हमारे पास बैट भी नहीं थे, तो वो बैट का हम लोग ऊपर से थोड़ा हैंडल कट करके हम लोग यूज करने के, नीचे से थोड़ा बॉटम कट करके, फिर हम लोग वैसा थोड़ा हम लोग हेरो साइज बैट हम लोग बनाने के, तो एटलीस्ट हम लोग यूज कर सकते थे. सो वो सब हम लोग करने के. बट नाउ टच वुड everything is on a track. Right. But ये जो टाइम था वो मैं कभी नहीं भुला सकूंगा लाइफ का. Yeah, I mean हमारे पास कुछ नहीं था, पर हम लोग के पास कुछ नहीं था, पर तभी भी हम लोग काफी मेहनत करने के, बट हम लोग को बाय गॉड ग्रेस हम लोग को धीरे धीरे मिलते गए. अगर हम लोग के पास कुछ भी नहीं होता था ना, स्टिल आई रिमेम्बर, आई विल टेल यू वन स्टोरी ऑफ माय अंडर 19 फाइनल भी. हम लोग यूपी के अगेंस्ट खेल रहे थे. ओके. अंडर 19 वन डेज फाइनल अगेंस्ट यूपी के साथ खेल रहे थे, और हम लोग का नॉकआउट का टूर था. और तब हमारे पास पूरा बॉम्बे टीम था और सब कुछ था, मतलब प्रॉपर हम लोग. तो तब मेरे पास, हम लोग नॉकआउट के टूर के लिए जा रहे थे और मेरे पास ग्लव्स नहीं थे. अच्छा. ओके. तो बैटिंग ग्लव्स नहीं थे. बैटिंग ग्लव्स थे मेरे पास, पर वो फट गए थे. ओके. एंड सिंस यू आर लेफ्टी, सो सबका यूज नहीं होता है, मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स आर राइटी प्लेयर. एग्जैक्टली. तो अभी सिचुएशन ऐसा हो गया, तो कि मैं मांगू तो किसके पास मांगू. तो वैसा हो गया था. बट स्टिल आई रिमेम्बर दैट के जो भी हम लोग को स्कूल में थोड़े बहुत या फिर पॉकेट मनी मिलने के थोड़ा हम लोग जमा करके, फिर मेरे को पता नहीं, और शाम का हम लोग का ट्रेन था जाने के लिए, और मुझे सडनली रात को कि ऐसा एक ड्रीम था कि अभी वो सोच रहा था ग्लव्स कैसे लेने, अभी नया मैच ऑन, आई मीन नॉकआउट को जाना और ग्लव्स नहीं है. तो सडनली सपने में ही आ गया कि तूने कुछ सेविंग की थी. तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं रात को उठ के ही मैंने जो जहाँ पे वो सेविंग का जो मैंने अपना रहता है सेविंग बॉक्स जो था, मैंने वहां पे चेक किया कि पैसे है कि नहीं. तो तब रात को ही मैंने उठ के जस्ट थोड़ा हिला के देखा, यस पैसे है, तो ग्लव्स आ जाएंगे. भले कितने भी सस्ते हो, पर ग्लव्स
का मिल सकेगी. तो सो फिर वेरी नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में स्पोर्ट्स फोलियो गया शिवाजी पार्क. फिर शिवाजी पार्क वो टाइम पे मैंने कुछ 350 के ग्लव्स लिए थे. उसमें भी हाफ लेदर था और बाकी कॉटन के थे, मतलब कपड़ा लगा और हाफ लेदर था. Still I remember those days. So yeah. No, but फिर बाद में इंडिया खेलने के बाद सब स्पॉन्सर्स सब धीरे धीरे मिले मुझे, जैसे फिर बाद में मेरे पास काफी जो और मैं आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल द स्पॉन्सर्स लाइक लार्सन, रीबॉक, एसएस एंड वैम्पायर and especially thanks to ZX. जब once you cross your age of 30, कोई ना कोई तुम्हारा बैकअप चाहिए. तो सिद्धार्थ महाजन जो ZX है पिछले 6 साल से मुझे स्पॉन्सर्स कर रहे हैं. So I would like to thank to him also. I mean, even we are thankful to such people who are backing you up and bringing such talent to India. I mean, backing you up, that is the most important thing I would say. और suddenly I would say है ऊपर वाले का हाथ है मेरे साथ किधर ना किधर. कभी भी कुछ भी मैं दिल से मांग जाता हूँ तो मिल जाता है. और ऐसा नहीं कि कोई भी लोभ या ऐसा नहीं है, बट है ऊपर वाले का हाथ किधर ना किधर से हो जाता है टच. Right. I mean, the story is great. आपने जो बताया है past का, and it would be very beneficial आपके academy के जो बच्चे हैं, आने वाले जो अभी growing है, जो अपने career में start किए हैं as a cricketer, और जो आपके एज के सबके लिए एक motivation है कि खुद ट्राई करते रहो. कुछ ना कुछ तो होएगा ही, आपको लाइफ में कुछ ना कुछ मिलेगा ही. Exactly. Never lose your hope. Yes. Even at age of 36, I never lose the hope. The thing is that passion has to be there. Whatever you do, your passion has to be there. Right. That's more important. Right. And make sure whatever you do, make sure you have to enjoy those things rather than ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे पे बहुत बर्डिंग आ रहा है. No, you have to enjoy every moment, each and every moment. Right. That's more important. Right. And something you are passionate about, it carries you. Something if you are passionate about, it carries you to that particular position where you want to be. Yeah, exactly. Just I'll give you I'll give you my example only. When I'm going on ground, I'm doing as a player my role. ठीक है. If I'm leading the side, so I'm doing as a captain my role. So same thing अगर मैं घर पे आ जाता हूँ wife के साथ, तो I have to change my role as a husband. So same if I'm playing with my daughter, so I'm changing my role again father. Yes. So अगर मम्मी और डैडी के साथ या भाई के साथ हूँ, अगर मम्मी डैडी के साथ हूँ, so as a son मेरा रोल होता है. Even भाई के साथ हो तो brother. So I'm enjoying that role. Every moment I'm enjoying, if I'm changing my role. So and same thing when अगर मैं बच्चों के साथ coaching करता हूँ, so as a मैं coach, I'm trying to my best to give them, So every time, even in the office अगर मैं जाता हूँ तो मैं as a employee जाता हूँ. So every time I'm changing my role, and most important, I'm enjoying my role. That's more important. At last, whatever last is your passion, and that drives you towards your goal, towards your destination. Yeah. And see, and I always learn from my father, and that success is your journey, not a destination. So just keep work hard. Success will come to you. Right. So just keep enjoying your success. Right. That's not a destination. Right. It's not end. Something is still left to be achieved. Something is still left. Right. You should be greedy about your goal. That is what I can say. Goal is exactly. There was when I was with Mumbai team, so that time always Wasim Jafar, and always there. So what I learned from him, and still
just keep scoring the runs, just keep going and keep going. That's keep you motivated. let your bat keep ticking. Let your bat keep ticking. So where I'm nearly achieving my my goal, my milestone. I really 90 to 100 I scored in A division, so 800 is left to complete my 100 in A division. So I'm nearly there. That's why I'm keeping myself very fit, and I will try to play as long as what I can serve to my company cricket or club cricket, and what I can give my best to my students. Right. So where you work right now? In which company you're working? I'm working for Tata Power. Okay, you're working for Tata Power. All right. Yeah. So I mean, the position currently for India is really bad. Like because of coronavirus, सब लोग घर पे है, सबको घर पे ही रहना है. So basically, how you keep your family safe? For small things, we have to take care of them. So how you keep those how you take those safety measures? Well, about the safety measure, first of all, हमारा कॉलोनी सील कर दिया है, so कोई बाहर का अंदर भी नहीं आ सकता है. Right. अगर if you wanna go out, so you can, हम लोग जाते हैं obviously, तो सिर्फ मैं ही जाता हूँ, फैमिली तो नहीं जाती है. कुछ भी घर का थोड़ा बहुत राशन या कुछ भी सब्जी आदि कुछ भी लाना हो तो मैं ही अकेला जाता हूँ. अदरवाइज फैमिली तो मैं उनको सेफ ही रखा हूँ, और जैसे भी बाहर का कुछ भी मैं लाता हूँ तो आई विल कीप आउटसाइड वन गर्म पानी का बकेट एंड सब उसमें डाल के एंड सैनिटाइजर यूजिंग. और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलोनी में तो सब कुछ प्रोवाइड किया है. एवरी 3 days के बाद पूरा बिल्डिंग को सैनिटाइजर करते हैं एंड पूरा दवाई ये सब जो भी बिल्डिंग के आजू बाजू जिसको भी करना है वो सब करते हैं. उन लोग का काम आई थिंक इन लोग में बिल्डिंग वालों ने काफी कुछ सेफ्टी केयर किया है. सो बेसिकली और कीपिंग फैमिली सेफ के लिए तो जैसे मैं कहा कि मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल वो टाइडी बहुत अच्छा लगता है. तो सफाई में तो मेरा आई डोंट थिंक सो कि किधर में कहाँ पीछे होगा. आई थिंक दिवाली में भी मेरा घर सेम रहता है, बाकी फुल ईयर वैसे ही मिलेगा, कुछ चेंजेस नहीं होते. So it's Diwali every time you visit anyone visit your place, it's Diwali. नहीं, बट मैं बोला सफाई के मामले में बेसिकली क्योंकि मेरा माइंडसेट हमेशा ऐसा रहता है, इफ यू कीप योरसेल्फ प्रॉपर क्लीन एंड नीट टाइडी, देन you will start thinking positively. Right. अगर वही चीज अगर 10 I'll give you one example. अगर if you are working in the office, अगर टेबल पे ही आपके 10-15 पेजेस इधर से उधर बिखरे हुए हैं, so अगर आप लोग ऑफिस में जाके बैठते हो, आप पहले ओह नो मेरा कितना काम है, इतना सारा काम मुझे फिनिश करना है. So वही पेपर अगर आप एक लाइन में रखते हो, बाय वन बाय वन आप अगर यूज तो भी आपका टेबल भी आपको नीट एंड टाइडी रखेगा और आपका माइंड सेट भी थोड़ा प्रेशर भी नहीं आता है, प्रेशर भी कम रहता है. आई मीन यू विल फील क्वाइट गुड. वर्क एनवायरनमेंट जितना साफ सुथरा रखना है उतना ही घर साफ सुथरा रखना चाहिए. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई काफी जन बोलते हैं घर एक मंदिर है. डेफिनेटली घर एक मंदिर है. अगर आप लोग ध्यान से अगर उसको साफ सफाई रखते हो तो obviously सच्ची बात है. People who have started working from home have started feeling that कि वर्क एनवायरनमेंट में जो कंडीशंस होती है वही घर पे भी रखना शुरू कर दिया है लोगों ने, क्योंकि घर से काम करना है तो उन्हें वही स्वच्छता चाहिए. तो आपने जैसे कहा कि आपकी एक एकेडमी यूके में भी है जहाँ पे आप बच्चों को ट्रेन करते हो. यहाँ पे भी एक एकेडमी है, संजीवी क्रिकेट एकेडमी. आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? डेफिनेटली एकेडमी को स्टार्ट होके 5 महीने हुए. दिलीप वेंगसरकर सर ने उसका ओपनिंग किया है. और आई वुड लाइक टू थैंक्स रंजीत सर हु इज आवर प्रमोटर. Okay. And the founder is Arun Kotian of this academy, and मैं head coach हूँ academy का.
बेसिकली मैं खुद का अकेडमी 2 साल पहले ही मैं स्टार्ट करने वाला था। तब फिर सडनली आदित्य बिरला का सीईओ था जो चरण शेट्टी, वो मेरा अच्छा दोस्त है, तो उसने मुझे ऑफर किया था कि प्रफुल्ल, rather than you are starting yourself, just join with us. So मैं जो भी मेरे स्टूडेंट थे, तो मैं स्टूडेंट को लेके आदित्य बिरला में गया, फिर वहां पे कोचिंग की। फिर आदित्य बिरला में था कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे, तो इसलिए आई लेफ्ट that academy. Then I started this thing only. Right. Then I joined this academy, and everything is going smoothly. And yeah, but no doubt बच्चे लोग काफी talented है, जो काफी मेहनत कर रहे हैं, and even some of the boys, you know, they are playing in B division. And I'll give you one example, Devendra Parida. Okay. Yeah, I was working with him from last 2 years. Before that, वो क्या करने का, जाने का, सब लोग को बॉलिंग करके आ जाने का। तब स्टिल आई रिमेम्बर, मेरा सिर्फ एक ही बात हुआ था उससे, एक सेंटेंस हुआ था, तू जब लोगों को बॉलिंग डालते बैठेगा तो तेरा कब सोचेगा तू। Then he started realize for himself. Then slowly वो मेरे साथ मिलता जुलता गया, हमारे साथ बातचीत हुई, हमारा जेलिंग थोड़ा बढ़ते गया है। फिर नाउ दिस ईयर ही वाज इन 2 साल में वो मुंबई अंडर 23 के प्रोबेबल्स में था। उससे समर कैंप में हाईएस्ट विकेट टेकर रहा लास्ट ईयर। अभी इस साल कोरोना के वजह से उसका मिस हो गया, बट स्टिल बच्चे लोग काफी है, टैलेंटेड है, सिर्फ उन लोग को राइट डायरेक्शन चाहिए। सिर्फ वैसा। और काफी जन ऐसे भी है, काफी बैट्समैन, काफी बॉलर, फील्डर्स जो यू नो फ्यूचर बन सकते हैं मुंबई के लिए। सो अकेडमी, सो जो भी अंडर 19 23 है, आई थिंक मैं ये बिलीव करता हूँ कि तुम्हारा टेक्निक वगैरह ठीक है, तुम्हारे पास टेक्निक रहना चाहिए, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बट अंडर 16 तक टेक्निक तुम लोग वर्क करो जो भी है, बट अंडर 16 एक बार क्रॉस होते हो अंडर 19 और 23, जब क्लब क्रिकेट आ जाता है, सिर्फ तुम्हारा परफॉर्मेंस दिखना चाहिए। इन दी एंड टेक्निक होगा, पर अगर तुम्हारे पास परफॉर्मेंस नहीं होगा, स्कोर बुक में परफॉर्मेंस नहीं होगा, तो टेक्निक का कुछ मतलब नहीं होता है जब तक तुम लोग स्कोर बुक में जब तक परफॉर्मेंस नहीं होगा। सेम थिंग मैं हमेशा मेरे बच्चे लोग से मैं हमेशा शेयर करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स लोग के साथ। सो वैसा, और काफी कुछ चीजें हैं हमारे साथ। मेरे साथ मेरा भाई जो खुद फिटनेस ट्रेनर है, पिछले 11 साल पहले उसने फिटनेस ट्रेनिंग पास आउट किया है। सो इवन ही इज विद मी एज अ ट्रेनर। नैनीत आगरे करके वो हमारे असिस्टेंट कोच है, और महेश जादव करके वो भी असिस्टेंट कोच है। I'll give you one नैनीत आगरे जो हमारा एक असिस्टेंट कोच है, वो मेरे साथ ही, मेरा एज ग्रुप में मेरे साथ ही था वो। और आप बिलीव नहीं करोगे, उसका फील्डिंग देखने के लिए ना, ऑलमोस्ट शिवाजी पार्क में जितने नेट्स लगेंगे ना, सब उसका फील्डिंग देखने के। और मेरे से तो 10 टाइम बेटर था, 10 टाइम मेरे से। बट ओनली थिंग इज दैट यही हुआ कि उसको राइट गाइडलाइंस नहीं मिला। सो काफी साल हम लोग फिर मैंने वहां से, मैंने जैसे आपको बोला, फिर मैं वेंगसरकर अकेडमी ज्वाइन किया था, तो फिर हमारा वहां से मिलना जुलना बंद हो गया था नई नीत के साथ। तो फिर बाद में वो 15 साल के बाद मिला। मैंने पूछा क्या चल रहा है क्या नहीं, तो प्रफुल्ल बोलता है ऐसा ऐसा है। मैं बोला चल आ जा मेरे साथ अकेडमी ज्वाइन कर, बच्चों और उसकी वजह से ये ना जो मेहनती लड़के, जो जैसे कोई कोचेस होते हैं कि सिर्फ महीने के लिए रुके रहते हैं, हाथ पे हाथ खड़े रख के, ये सैलरी के लिए रुके रहते हैं। बट आई डोंट लाइक स्पेशली दोस टाइप ऑफ कोचेस ऑनेस्टली। मेरे को सच है कि तुम लोग बच्चों के साथ खुद, अगर तुमने खुद ने एक्सपेरिमेंट किया है तो वही बच्चे लोग पे होगा। अगर खुद सिर्फ बुक नॉलेज वो बुक तक रहता, अगर तुम लोग खुद प्रैक्टिकल अगर किया होगा, उसका डिफरेंस अलग होता है।
मैं ये मानता हूँ। राइट। तो ऑब्वियसली उसके वजह से काफी बच्चों को हेल्पफुल भी हुआ है फील्डिंग वाइज, और in I would say in all term, bowling, batting and fielding, so no doubt Right. in that. So yeah, basically I would say thank to God against कि 15 साल के बाद वो वापस मुझे ही मिला rather than इधर उधर जाने के वजह। Right. So I was saying that you have been lucky enough throughout your career. I mean, initially आपने बहुत मेहनत की, आपने academies change की, you got better and better. Then you started playing for Mumbai. Under 19 you started playing. Then got selected for under 19 India. Then started playing for Ranji, and then many other stuff lined up. And as you said, that guy came back again after 15 years. So एक ऐसा मैसेज जो आप सारे यंगस्टर्स, इंडिया के सारे यंगस्टर्स को देना चाहेंगे At this situation, कोरोना के सिचुएशन पे, मे बी नो ओवरऑल सिचुएशन पे आप अगर कुछ मैसेज देना चाहते हो तो? basically I would say it's very important to stay positive in your life. Rather than thinking about the future and past, it's more important to stay in present time. अगर हम लोग फ्यूचर का सोचते हैं और पास्ट का सोचते हैं तो प्रेजेंट टाइम जो होता है वो हाथ से निकल जाता है. It's more important to stay in present. What you are doing in present, that's more important. अगर आप प्रेजेंट में अगर आप लोग अपने प्रोसेस पे ध्यान देते हो तो आपको वो अचीव होना ही है, वो किधर नहीं जाना है. Right. But it's more important to stay in present. That's I would say. Right. Even right. even same thing. कल मैंने मेरे स्टूडेंट्स लोग से बात किया कि ये मत सोचो कि आपका एक साल वेस्ट हुआ कोरोना के वजह से. उन लोग का मुंबई का कोई स्टूडेंट्स थे, अंडर 19 का लास्ट ईयर था, अंडर 23 का लास्ट ईयर था. तो ये मत सोचना कि हमारा लास्ट ईयर वेस्ट हुआ. तुम लोग ये सोचो कि हम लोग को हमारा स्किल और परफेक्ट करने को और थोड़ा टाइम मिल गया है. राइट. और मेंटली तुम लोग रेडी रहो. जब भी क्रिकेट स्टार्ट होगा, सितंबर अक्टूबर, जब भी क्रिकेट स्टार्ट होगा, तो दैट टाइम यू शुड बी रेडी. वो टाइम पे ऐसा पैनिक नहीं होना है, अरे पूरा 4 महीना तो मैं घर पे ही था, मैंने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और सिलेक्शन सडनली सामने आ गया. सो ये टाइम जो है, तो मैं हमेशा बच्चे लोग से यही बात करता हूँ कि ये ऐसे टाइम पे तुम लोग तुम्हारा माइंड रेडी करो वो सिचुएशन के लिए कि जब तुम लोग का सामने सिलेक्शन रहेगा तुम लोग रेडी होना चाहिए. जैसे बैट्समैन लोग अपना घर पे शैडो प्रैक्टिस कर सकते हैं. राइट. सो बॉलर लोग है, दे कैन डू फिटनेस, स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, और उन लोग के लिए काफी कुछ बॉलिंग हम लोग ने टेक्निक बताई है, जो भी स्किल वर्क बताया है बैट्समैन को, बोलो दे कैन डू एट होम आल्सो, नॉट नेसेसरी कि ग्राउंड पे ही जाना है. सो इवन अगर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग नहीं होता है तो दे कैन डू स्पॉट जॉग आल्सो. स्पॉट जॉग के लिए क्या है, सिर्फ एक 2 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए. दे कैन डू स्पॉट जॉग आल्सो, लाइक 6 मिनट हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट कर सकते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स इन फिटनेस आल्सो. राइट. सो दैट्स द थिंग. और आई वुड से stay in present, that's more important rather than thinking about the future and past. Right. Just मुझे एक बात याद आई इंडिया अंडर 19 की, कि नॉर्मली सबको रूम पार्टनर देने के, तो मेरा रूम पार्टनर अंबाडी रायडू था. और वैसे ही सबके एक रूम पार्टनर थे. तो एक दिन हमारा प्रैक्टिस सेशन कुछ कैंसिल हो गया था. तो वो प्रैक्टिस सेशन कैंसिल होने के टाइम सब जन ने साथ में डिनर किया. फिर डिनर के बाद रात को ऐसे ही सब जन हम मेरे ही रूम में, बिकॉज रायडू वाज कैप्टन, तो रायडू ने बोला चलो आ जाओ रूम पे, थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं, ऐसे ही थोड़ा माहौल बनाते हैं.
तो माहौल बनाने के चक्कर में भूत का स्टोरी स्टार्ट हो गया था। सो वो भूत का स्टोरी जो इतना सीरियस हो गया था बाद में, तो उन ऑब्वियसली सुरेश रैना ये लोग आरपी यूपी बीपी से थे, वीआरवी सिंह पंजाब से, ये तो मतलब ऑलमोस्ट सारी टीम थी हमारे साथ। राइट। तो जैसे स्टोरी स्टार्ट हुआ तो एकदम सीरियस होने लगी कि यू नो दिल्ली में ऐसा होता है, पंजाब में थोड़ा ऐसा हुआ, फिर वो थोड़ा बहुत जादू तो ना यू नो लिंबू बिम्बू का सब। फिर बहुत थोड़ा सीरियस होने के बाद और बात में है ना 3:30 बज गए थे। ओके। और हम लोग को पता ही नहीं चला कि कब 3:30 बज गए, क्योंकि ये स्टोरी इतना रोमांटिक इतना डेंजरस होने लगा था ना वो स्टोरी। तो वो स्टोरी काफी डेंजरस होने लगी थी, और आप बिलीव नहीं करोगे कि सबके ऐसे बाल खड़े हो गए थे हाथ के, इतने डेंजर स्टोरी चालू होने लगी। तो अभी उसमें से 40% स्टोरी तो फुल क्या फेंक रहे थे वो हमको भी पता चल रहा था, पर अभी कैसा है टर्न बाय टर्न था, सबका सुनना पड़ता था। पर कुछ स्टोरी ऐसी बात सच थी जो यू नो उन लोग ने महसूस भी किया था। Okay. और कभी कभार हम लोग को ये बात झूठ भी लगने की, तो ऑन द स्पॉट वो लोग अपने पेरेंट्स को कॉल करने के कि पापा ये बताओ ये हुआ था कि नहीं, तो उसके उन लोग के डैडी भी बोलने के कि अच्छा। हाँ ये बात सच है। तो या बातों में 3:30 बज गए थे, 3:30, और जैसे हो गया सब, फिर बोलता है चलो अभी नींद आ गई, जाते रूम में सोने को। तो जैसे रूम का खोला तो लॉबी में सिर्फ 2 ही लाइट थी, बाकी सब अंधारा था, क्योंकि 3:30 बज गए थे, तो लॉबी का भी इतना कोई लाइट चालू रखता नहीं है रात को। राइट। तो और हमारा वर्ल्ड कप का स्टोरी है बांग्लादेश का, और कंट्री भी दूसरा। राइट। और बांग्लादेश था, तो सिर्फ लॉबी में 2 ही था, हमारे फ्लोर पे 2 ही लाइट चालू। और जैसे बाहर देखा तो 2 ही लाइट। आप बिलीव नहीं करोगे, वो 3:30 बजे हम लोग सारे जो भी पूरे टीम थे हमारे ही रूम में सोए थे, एक दूसरे के हाथ पकड़ के। और जब भी ये बातें मुझे याद आती है, तो आई थिंक 3 साल पहले मैंने राइडू से बात किया था। तो राइडू बोलता तो हाँ मुझे पता है ये बात कि ये ऐसे हुआ था। फिर यू नो कभी कभार काफी कोई दोस्त लोग थे जो वर्ल्ड कप में थे, काफी फ्रेंड्स लोग थे, कभी कभार ऐसी जो एक मेमोरीज थे जब हम लोग बात करते हैं। तो ये काफी वाला, पर वो सचमुच डरावना और ऐसा था कि जो बोलते हैं ना टीम जेलिंग होना चाहिए, वो रात को ही टीम जेलिंग हो गया था। भले अलग अलग स्टेट से सब थे, पर एक दूसरे को पकड़ के जब सो गए थे हम लोग डर के मारे। तो जैसे सुबह पता चला, तो जैसे दिन निकला उजाला आया, जैसे जब लाइट्स होटल्स में आने लगी, वैसे आई मीन यू नो सनलाइट राइट। फिर धीरे धीरे सब जन अपने रूम में गए। फिर कभी कभार हम लोग मिलते तो किस्सा डेफिनेटली याद करते हैं। राइट। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग था ये, मतलब कि कहीं और कंट्री में जाके रात को ये सब बातें करना, एंड देन starting with an exciting moment and then डरावना चीज चालू होना, and this kind of incident. डरावना तो पर कभी कभार हम लोग को ऐसा झूठ लगने का, हम लोग ऐसा बोलने का अरे क्या तू फेंकता है। फिर अगर हम लोग अभी उन लोग को थोड़ा ईगो हट होने का ना, अगर मैं झूठ बोला तो वो लोग डायरेक्ट पेरेंट्स को कॉल करने कि पापा बताओ ऐसा हुआ था, तो उन लोग के डैडी बोलने के ऐसा हुआ, और जैसे उन लोग के डैडी बोलने के ना ऐसा हुआ, तब हमारे हाथ के बाल ऐसे खड़े हो जाने की भाई ये स्टोरी सच है। Yeah, and even under 19 guys are like very, I mean at their tender age, बहुत छोटे हैं। और उस टाइम पे मतलब पहली बार अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में खेलने गए, अकेले हो, पेरेंट्स नहीं है, कोच उनके खुद के रूम में है, हम सिर्फ प्लेयर्स, हम सब exactly. हैं। तो वो सब चीजें बहुत एक्साइटिंग भी रहती है, और साथ में ऐसी सब बातें हो तो डरावनी भी हो जाती है। और बेसिकली कैसा है ना, मेन ऐसा था कि सब जन रूम के लिए निकले तो उनके जो लॉबी में सिर्फ 2 ही लाइट दिखे, और जो हमारा फ्लोर था वो फ्लोर में कम से कम आई थिंक 40-45 रूम्स थे। राइट।
और पूरे 40-45 मिनट्स में अगर 2 ही लाइट चालू है तो कोई भी अपने रूम में जाने को डेयरिंग नहीं कर रहा था. वो भी हॉरर मूवी जैसा हो जाता है, लाइट बंद है, Exactly. हॉरर मूवी जैसा हो जाता है. Yeah, exactly. So it was great talking to you, Praful sir. Thank you so Pleasure. much for joining us and giving us some time out of your busy schedule. And stay home, stay safe. Yeah, you too, and everyone, stay home, stay safe. Thank you, sir. Thank you, sir.